There's new audience, so I would like to repeat this thing. For the first time in AgriCorp conference, we have introduced this new concept called Fund Quest. Fund Quest, Agripreneurs 2025. I'll just brief you about this. It is a dedicated platform curated by the Bombay Chamber of Commerce and Industry to empower high potential agri-tech and allied sector startups by connecting them directly with leading investors, VC funds, family offices, and HNIs. Supported by a ramp-up advisory LLP, the initiative provides startups with a structured opportunity to present their business ideas, undergo expert evaluation, and participate in live pitching sessions during this 16th conference. The key takeaways include enhanced visibility among seasoned investors, access to growth capital opportunities, potential collaborations, and strategic partnerships, and the chance to join the growing list of success stories created through Rampup's earlier funding-focused events across India. And to conduct this session, I would like to invite on stage partner, Ramp-Up Advisory LLP, Mr. Nilesh Lele. Thank you. So, thank you BCCI for creating this platform. And yesterday we had 4 pitches. All 4 pitches have been appreciated by the investors who were here yesterday, and they have all requested for further round of discussions with them. Mr. Girish Chitale has shown interest in the market yard as well as in Jasveer Singh's startup. ProGrowth Ventures have shown interest in the other 2 startups, the Purandar Highlands as well as Josh AI. Okay? So we will keep continuing the same session today. So we have 5 startups who will be pitching today. We'll have 2 pitches right now, followed by a panel discussion, and 3 pitches after the panel discussion. So whoever are interested, please stay back for the rest of the day before lunch. And we have Mr. Brandon Farrows here again today. Thank you, Brandon. He's Regional Head West from India Angel Network, who recently announced a $100 million fund raised called the Alpha Fund. And a few other investors who are here were not able to join today, but they have requested Prashant Naigaonkar to represent them and take the discussion forward. And we also have Deepak Patil, who should be here anytime soon, right? So, so it's going to be a fascinating pitching session. So I would first like to invite Dr. Rajul Patkar to do her pitch. Dr. Rajul? So can we have her PPT as well? Ma'am, you are ready? No, they are there. Yesterday, don't worry. That's a different panel. Those are the names of the next panel. हाँ? एक ही आने वाले हैं और वो आ जाएंगे और हम आपको 1-to-1 करने देंगे. Don't worry about it. Yeah? So, over to Dr. Rajul. You will get 8 minutes to pitch, followed by 7 minutes of Q&A. So, good morning, everyone. I am Dr. Rajul Patkar. I don't know if it is so visible, but I am Dr. Rajul Patkar. I am an engineer by profession. I have done my BTech and then Masters and PhD from IIT Bombay. And during my PhD, I mean, I don't come from agriculture background, but when I was seeing a lot of distress in agriculture around 2010-11, so I thought, why not build technologies in agriculture? And that is how my journey into this started. 2011 to 16-17, we developed multiple innovations, and from those, we developed into products. So 2017 is we formed SoilSense to commercialize our technologies. So what you see, and why did we do that? Because we believe farmers need science-backed data. जब तक कि farmers को data proper नहीं मिलेगा, reliable नहीं मिलेगा, I think we cannot improve their farmers' productivity, we cannot reduce their input resources, and we cannot remove the distress that farmers have. So that is why we started this, and that is what we are doing. And how we are doing, we are kind of
I mean, if you also want to ensure food security, हम जो बोल रहे हैं 2047 तक हमें 74% प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, पर वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारी लैंड्स तो डिग्रेड होते जा रही है. ओनली व्हेन वी कैन डू प्रिसिशन एग्रीकल्चर, मतलब जितनी ज़मीन को ज़रूरत है उतना ही डालें. इफ़ वी कैन डू दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, देन ओनली वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. बट देर आर चैलेंजेस विद प्रिसिशन एग्रीकल्चर. हमें लैब में सॉइल भेजनी पड़ती है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग. सो वॉट वी हैव डन इज़, I will talk about it, but we have built soil testing technologies, water testing, moisture sensors, IoTs and all that as a community based product, because that is what India में ज़रूरी है कि community based products हो. और एक हम complete suite of software hardware provide करते हैं farmers के लिए, so that उन लोगों को ये technologies science backed data मिले. Next slide. Oh sorry, I have that. ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? अगर हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको सॉइल टेस्टिंग करनी है. अभी आप किस तरह से सॉइल टेस्ट होती है, सैंपल भेजना पड़ता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं. जब तक कि वो क्रिटिकल विंडो जो फर्टिलाइज़र फार्मर्स को फर्टिलाइज़र डालने की होती है, दैट वी मिस. सो वी नीड टू ब्रिंग लैब टू द सॉइल. So, and other thing is that agar village mein even if we bring technologies, there is no electricity, there is no infrastructure, so and there are no skilled manpower. So we need to resolve that problems. That is what as a soil sense we are doing. So we are developing village level entrepreneurs, we are working with farmer producer organization, we are working with FPC, and you can see that. And this is our device that we have completely integrated lab into this. मतलब जो पूरी एक lab होती है वो एक छोटी सी portable device that you can see. ये हमारी पूरी की पूरी लैब है सॉइल टेस्टिंग की, इस छोटी सी 100 ग्राम, और ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर 8 कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है, और ये वैलिडेटेड टेक्नोलॉजी है. तो जैसे मैंने कहा कि हम एक ही इनोवेशन में नहीं है, वी हैव डेवलप्ड स्वीट ऑफ इनोवेशंस. सॉइल टेस्टिंग का एक प्रोडक्ट है जो कि आप देख सकते हो, 100 ग्राम से छोटी डिवाइस है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है. वैसे ही हमने मॉइस्चर के लिए, इरिगेशन के लिए किया है, और कंप्लीट ऐप प्रोवाइड की है कि जिसमें फार्मर, फील्ड ऑफिसर इंटरेक्ट कर सके, कंप्लीट डैशबोर्ड. एंड हम लोग इसी पे नहीं रुके हैं, और भी मल्टीपल इनोवेशंस ला रहे हैं. ये मार्केट बहुत बड़ा है. आई थिंक जो भी यहाँ बैठे हैं उन्हें सबको मार्केट समझ है, पर अगर हम केवल प्रिसिशन एग्रीकल्चर की मार्केट की बात करें तो ग्लोबल 10 बिलियन से ऊपर का मार्केट है, और वो बढ़ रहा है, राइट. और अगर हम इंडिया की भी बात करें कि अगले सॉइल साइंस का क्या स्कोप है, तो अगले 7 से 10 साल में ये कंपनी 100 करोड़ की कंपनी बन सकती है. इतना इसमें स्कोप है, ऑलरेडी हम ये प्रूव कर रहे हैं. आप देख सकते हैं हमारा बिजनेस मॉडल. अभी हम चाहते हैं कि जो ऑन ग्राउंड पार्टनर्स है, जिसको फार्मर्स ट्रस्ट करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर हो गए, जो भी कंपनी, हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में काम करते हैं, सो दैट उनका भी फ़ायदा हो और फार्मर्स को भी इफेक्टिव इंस्टेंट सर्विस मिले, और वो भी अपना रिसोर्सेज कम कर सकें. हम लोग ग्लोबल, ये हमारा इम्पैक्ट है. ये पिछले 2 साल पुराना प्रोडक्ट है, और 2 साल में हमने 20 से 25 हज़ार सॉइल टेस्टिंग की है. इतने फार्मर्स को रीच किया है. 17 स्टेट्स में हैं, 8 कंट्रीज़ में हमारी ये डिवाइस जा चुकी है, और हमारी मोर देन 35 प्लस नहीं, 75 प्लस B2B क्लाइंट्स हैं हमारे. और हम लोग कार्बन क्रेडिट, जो एक बहुत बड़ा स्कोप अलग से चल रहा है, उस पर भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. और मुझे अभी तक, मतलब ये एक बूटस्ट्रैप कंपनी, और हमने अभी तक गवर्नमेंट से 2 CR के ऊपर तक हमें ग्रांट्स मिले हैं रिसर्च करने के लिए, इक्विटी फ्री ग्रांट्स. कंपटीशन अगर देखा जाए तो सॉइल टेस्टिंग के आपने बहुत मशीनों के नाम सुने होंगे. एक डायरेक्ट सॉइल टेस्टिंग होती है, एक इनडायरेक्ट सॉइल टेस्टिंग होती है. डायरेक्ट मतलब लेबोरेटरी बेस्ड, गोल्डन स्टैंडर्ड. तो हमारा प्रोडक्ट एकदम गोल्डन स्टैंडर्ड है. केमिकल बेस्ड सॉइल टेस्टिंग है, वैलिडेटेड है. और इनडायरेक्ट होती है, उसमें आपको मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, फिर सॉइल चेंज होती है तो मॉडल बिगड़ जाते हैं, एक्यूरेसी उसमें कभी आ ही नहीं सकती. तो हमारा केमिकल बेस्ड है और वेरी रिलायबल है, और हमारे टेस्टिमोनियल्स, जो क्लाइंट के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, कोई भी चला सकता है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और ये हमारा आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, जैसे हम अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं. सॉइल टेस्टिंग हमने एक दिन में भी उनके साथ करी है. ये कोई भी ऑपरेट कर सकता है. देखिए आप, गुजरात में गांव की लेडीज़ न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट में काम कर रही है. ये एक FPC है झारखंड में, जहाँ पे काम हो रहा है, कोई इसकी एक लेडी यूज़ कर रही है. स्कूल के बच्चे तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स का माइंडसेट चेंज करना मुश्किल है, बच्चों का ईजी है.
ये भी एक और FPA, और हमने हिमाचल तक में भी दिखाया कि 0 डिग्री में भी हमारी टेक्नोलॉजी चलती है। ये इम्पैक्ट है एक जगह का कि हम 40% तक हमने इनपुट कम करके बताया है फार्मर्स का। ये हम इससे पूरा का पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, ये आप न्यूट्रिएंट मैप्स, मॉइस्चर मैप्स, पीएच मैप्स, ये सारे के सारे हम जनरेट करते हैं। पूरा का पूरा डेटा क्लाउड पे है, और जो एआई की कंपनीज़ हैं जो डेटा चाहती है रिलायबल, बिना डेटा के एआई कंपनी नहीं चल सकती, तो हम वो डेटा जनरेट कर रहे हैं रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव। ये मेरा क्योंकि 2 साल पुरानी है, फर्स्ट ईयर में हमने 45 lakhs किया था रेवेन्यू में, नेक्स्ट ईयर 60 lakhs, सो वी आर ग्रोइंग, एंड दिस ईयर इन लास्ट 3 months वी हैव एक्चुअली रीच 37-38 बिकॉज इट्स वेरी सीजनल। मेरी आस्क है ये जो कि मैं चाहती हूँ 2 से 3 मतलब 2.85 CR तक का, और ये हमारा आप कह सकते हैं कि आगे हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी R&D फोकस भी है। सो वी आर इनटू कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन के भी हम डिवाइस बना रहे हैं, वाटर क्वालिटी में भी जा रहे हैं, एंड दिस इज़ माई टीम, एंड थैंक यू। आई एम ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। सॉरी, क्या? Yeah, hi, doctor. Here. Yeah, sorry. So, first thing is, I want to understand on the patents, like how many patents have you filed and what is the exactly patents for? So this is a patent file for this device, not only in India and 4 other countries. Patent is not only filed. Patent is filed for this device. It's filed in India, China, Australia, USA, and Indonesia, because we are also working in Indonesia. So इस डिवाइस पे अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपने जो एक IoT ने बॉक्स जो टेरापोर्ट एक देखा था, पोर्टेबल मॉइस्चर मीटर फॉर, उसके लिए भी पेटेंट फाइल है, और अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है, बट इसका मतलब उस पर्टिकुलर पेटेंट का सब हो चुका है, बस डिसीजन इज़ पेंडिंग, एंड दिसका FER रिपोर्ट्स वगैरह आ चुके हैं, सो US से भी और इंडिया से भी, एंड वी हैव सबमिटेड दैट। Okay, and in terms of your traction, you have mentioned 25,000 farmers. So these include the international ones as well, or only India based? I mean 13% you can say are international, मतलब आप कह सकते हैं हमारा revenue, if you see the revenue 13% comes from exports। तो मेजरली इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने इम्पैक्ट सब इंडिया का ही मेजर किया है, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ जिनके साथ कर रहे हैं ये B2B क्लाइंट्स हैं, एंड दे आर यूजिंग इट फॉर स्पेसिफिक प्रोवाइडिंग सर्विस, सो दिस इज मोस्टली इन इंडिया। Okay, and the revenue is like directly selling of the device, or do you have a subscription based? No, currently revenue is one time selling of the device, but this device is more like a glucometer, so there is a recurring revenue that comes, like we have sensors like glucometer strips. Just a minute, I'll just show you. So these are the kinds of sensors just like glucometer. So we have a sensor for pH. So our major revenue is from the consumables. So it's not like one time एक डिवाइस ले लिया और ख़त्म हो गया. There is a people have to come back to us for the strips and the chemical reagents for And this device. these are also your product, or Yeah, it's- everything from ideation to design to development to manufacturing, everything, including these sensors. There is an IP on these sensors also. So the patent belongs to not only this device but also the sensors. Okay, understood. And what's the efficiency? Efficiency, if you talk about, there are two factors. One is reliability. So accuracy वगैरह जो lab के साथ golden standard के साथ, तो we are 80 to 90% accurate in terms of the reliability and the accuracy. In terms of efficiency, अगर आप एक lab में sample करते हो तो शायद एक दिन में 2, 4, 5 sample होंगे. इस device से आप एक दिन में एक single person without needing electricity can do 25 samples आराम से with this device. Okay, yeah, thank you so much. Yeah. Ma'am, this particular device, is it okay for 1 acre and 500 acres also, irrespective of acreage? This device is actually sufficient for one cluster of villages, because ये तो एक ग्लूकोमीटर जैसे है, और फार्मर को अगर एक इस डिवाइस से आप साल में, अगर मैं एवरेज 25 या 30 सॉइल सैंपल भी दिन का लेती हूँ, तो 6 महीने भी अगर मैं कंसिडर करूँ, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग सीजनल होता है, तो 25 दिन, तो 25 इंटू 6 इंटू 30, these are the total number of tests that can be done.
So this one device is sufficient for one village or one cluster of 5 villages. You don't have to invest in more. Excellent. And secondly, can you just elaborate about the competitive landscape? Okay. देखिए, यहाँ पर ये नाम शायद आप लोगों ने सब सुने होंगे कि अपने इंडिया की अगर हम बात करें, मैं बाहर की अलग बताऊंगी कि इंडिया की बात करें तो कृषि तंत्रा और मतलब पूसा STFR, और ये एक तरह का केमिकल बेस्ड हो गया जो कि हमारे टाइप का, लेकिन ये 20 किलो 25 किलो की मशीन है जिनको शेकर लगता है, जिनको टाइम लगता है, स्किल्ड पर्सन लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। वो मशीन की कॉस्ट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाती है। हमारी 40,000 की मशीन है, राइट? और इसको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती, इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो इट इज़ लाइक इन अ रियल सेंस पोर्टेबल। नन ऑफ दोस डिवाइसेस आर दैट वे पोर्टेबल। नाउ सेकंड आता है जैसे कि हो गया नियोपर्क हो गया और भू परीक्षक हो गया, जो कि केमिकल फ्री सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं। मतलब उनके लिए आपको मॉडल जनरेट करने हैं। दे आर नॉट स्केलेबल बिकॉज दे विल फर्स्ट जनरेट एक अगर सेक्शन में जा रहे हैं या एक गांव में जा रहे हैं तो उनको पहले उसका मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड्स है, दे आर नॉट डायरेक्ट केमिकल, सो एक्यूरेसी कभी नहीं आती है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आपको मॉडल जनरेट करना है, तो स्केलेबिलिटी बिकम्स ए चैलेंज कि आपको जहाँ भी जाना है आपको पहले मॉडल बिल्ड करना है। और अगर आपने सब पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए, मॉडल बिल्ड भी कर दिया, इस बार इतनी बारिश हुई कि सॉइल एरोड हो गई, तो आपका मॉडल काम ही नहीं करेगा बिकॉज सॉइल इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज ह्यूमन बॉडी और मे बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो आपकी एक्यूरेसी कभी उस डिवाइस से आ नहीं पाएगी उस तरह की जो इनडायरेक्ट मेथड है। तो ये मेरा इसलिए है। और केमिकल बेस्ड में हमसे सिवा पोर्टेबल आपको कोई मिलेगा ही नहीं। आई मीन आप किसी के भी ले लो 100 ग्राम की डिवाइस, दुनिया में ये सबसे छोटी कॉम्पैक्ट सॉइल टेस्टिंग मशीन है। मैम गुड मॉर्निंग, कैन यू गिव मी मोर इंसाइट ऑन योर फाइनेंशियल जर्नी? मतलब अभी तक कितना इन्वेस्ट किया है, क्या व्हाट इज़ द POC रेवेन्यू और प्रोजेक्शन, क्या प्लान है आपका? हाँ, तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, सो वी हैव नॉट रेज्ड एनी इन्वेस्टमेंट सो फार। सो बूटस्ट्रैप राइट नाउ? We are completely bootstrap company with the support from government grant, equity free grants. 2.2 CR तक मुझे अटल इनोवेशन मिला है, DST नीति प्रयास मिला है, बायरैक स्पर्श मिला है, हाँ बायरैक स्पर्श मिला है, सोशल अल्फा का मिला है, राइट, मिलेनियम अलायंस। सो ये सारे ग्रांट्स पे मैंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया। बीइंग ए वुमेन मुझे पता है कि कैसे कम पैसे में काम चला सकते हो, वेरी गुड, राइट? तो हमने उस तरह से वेरी लीन बिजनेस मॉडल, और हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है। 7-8 लोगों की कंपनी है, लेकिन हमारी रिसर्च कोई आप बड़ी कॉरपोरेट से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मुराटा के एक सिंगापुर से हेड आए थे, उन्होंने किया ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर डेवलप करने के लिए हमने मिलियंस लगा दिया। वी रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव डन इट इन सो लिटिल बजट। सो वेरी इंडियंस आर गुड एंड वुमेन आर बेटर। so this census is totally Indian based or some portion? Complete technology is purely 100% Indian. And now you applied for patents or something? Yes. How many patents you applied? We have applied for patent for this whole device and process and all that in India and other 4 countries. Okay. टेरापोर्ट जो मॉइस्चर है उसके लिए भी हमने किया है। जो मॉइस्चर सेंसर है वो हमने IIT बॉम्बे में डेवलप किया था, उसका पेटेंट IIT बॉम्बे से, जिसको हमने एक्सक्लूसिव लाइसेंस ले रखा है। So how much you are raising now? सो वी आर right now looking for 2.85 CR. And what is the 5-year projection plan? Any idea? See, मेरा 5 year में आई मीन बिट मोर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट मेरा 8 साल के अंदर मुझे 1 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड इम्पैक्ट करना है। And that tends to how much That value of the tends to business? almost 80, 90, 100 CR तक की कंपनी। सो अभी तक विदाउट मार्केटिंग, विदाउट एनीथिंग, वी हैव रीच्ड 8 countries just through a LinkedIn and word of mouth. No, I'm telling you, this is a very commendable work. Actually, I should appreciate your journey and all. Thank you So so thank you. much. Thank you very much. Thank you. Good morning, madam. I have one question. As a farmer, I am looking this type of device, but we are facing the challenges. Is that key will be get the results of a NPK secondary and macronutrient from your device? हाँ, सो ये जो वर्जन आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने शुरुआत से किया, एक सेंसर हर सेंसर से डेवलप किया, तो हमने pH से शुरू किया। तो अभी ये डिवाइस में बेसिक 6 पैरामीटर्स है, pH, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो ऑल 6 पैरामीटर्स बेसिक। Secondary and macronutrient सेकेंडरी, still. हाँ, इसका एडवांस वर्जन भी हम लेके आए हैं
जिसमें आपको सेकेंडरी पैरामीटर्स मिलेंगे। और हम लोग इसमें बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं हम बाहर क्या चल रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, क्योंकि इंडिया में तो हम जो 40-50 साल से करते आ रहे हैं वही चलाते आ रहे हैं, कभी आगे नहीं सोचते हैं। तो हम जब ये डेवलप कर रहे थे हमने काफ़ी रिसर्च की कि यूएस में क्या हो रहा है, नीदरलैंड्स में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल सा डिफरेंस दूँ कि हम लोग जेल्डाल से नाइट्रोजन मेजर करते हैं, राइट। प्लांट जो लेता है वो नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन लेता है, अमोनिकल बहुत कोई 1-2 क्रॉप लेता है, और हम मेजर कर रहे हैं कि भाई सॉइल में कितना है, ये नहीं मेजर कर रहे प्लांट कितना ले पा रहा है। ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर करता है नाइट्रेट, जो कि प्लांट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। आप तो ये हम एडवांस वर्जन्स इसमें ये लेके आए हैं, और ये जो कैल्शियम, कार्बोनेट, जिंक वो भी हमारे एडवांस वर्जन में है। So when expected get it this product to coming? पार्डन? When will be launching this product? नो, ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी कमर्शियलाइज्ड है इंडिया में 17 स्टेट्स में। No, I'm asking secondary and micronutrient because सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट हम ऑलरेडी, मतलब बुर्किना फासो करके कंट्री है, उसको ऑलरेडी बेच चुके हैं अपना सेकेंडरी वाला वर्जन। इंडिया में अगर कोई पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उनके साथ शुरुआत करेंगे। I have another question. This is vice versa because number of player they are approaching us for their product. या So before the utilization of this product on the farm, I can test it on your device also. Example, anyone will be approaching for the micronutrient. So I have to get the exact result what the content they have product. डेफिनेटली सर, मैं तो आप बोलती हूँ करिए, और आप एक काम करिए, हम लोग तो बहुत सॉइल के बहुत लैब्स के साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी कि एक सैंपल लीजिए, उसके आप 8 भाग करिए, 4 मेरी डिवाइस से टेस्ट करिए, 4 अलग अलग लैब्स में भेजिए। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लैब टू लैब इतने वेरिएशंस आते हैं कि किसको गोल्डन स्टैंडर्ड माने। तो आप आई डेफिनेटली एम ओपन टू। अभी हमारा एक जो SPM का मैंने दिखाया था, उन्होंने 25 सैंपल एक दूसरे लैब से करवाए, हमारे करवाए, एंड नाउ दे हैव कंपेयर्ड द रिजल्ट्स। ऑलरेडी हमने TNU के साथ वैलिडेट किया है, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग विथ ICR NRC ग्रेप। सो वी आर वेरी वेरी ओपन, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि रिसर्च हमने किया है। अगर कोई इशू भी है तो हमें चाइना भागने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर रिजॉल्व करेंगे। हम लोग यहीं पर हैं, पुणे में ही हैं। Thank you. Thank you. Anybody wants to see the device can see the working. This is a working. Yeah, thank you, Dr. Rajul. And we request you to wait till the end. Probably you'll get to interact with the investors after the event. Yeah, thank you.